بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں، اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں، حالات کو۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا، اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے، اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے۔ اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں، حالات کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟
इमाम साहब को इतने दुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं तो पता मैं कितना बड़ा आदमी हूं, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूं। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलया, जो मिलया तालब ज़रदा हो। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलया, जो मिलया तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तावीज़, हमने भी देख के भेज दिया, बात खत्म हो गई। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद के उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा तेरा ज़रफ़ बड़ा है और मेरा इल्म थोड़ा है, अगर तूने सही तरह पढ़ना है तो बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल के पास चला जा, सही तरह पढ़, फिर वो तेरी तिश्नगी खत्म करेंगे, तेरी प्यास बुझा देंगे, चला जा। कहते मैं कश्ती में बैठा आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती को जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। एक जजीरे पे हम उतरे, फरमाते हैं कि वहां पैसे वैसे भी खत्म हो गए, पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा। बगदाद की सिमत का तयन करके पता करके उस तरफ मैं चलने लगा पैदल। हमारा बच्चा माशाल्लाह से जो अब्बा जी से पूरे पैसे लेके जाता है ना पढ़ने के लिए, उसका भी पूरा प्रेशर होता है अब्बा जी के, आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, हालांकि बाद में पैसे सारे अपने अकाउंट में जमा कराता है, अब्बा जी को देता, लेकिन प्रेशर क्रिएट करता है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ आपके हुक्म पर, लिहाजा आप मेरा एहसान माने, माज़अल्लाह था। कहते मैं तयन करके बगदाद की सिमत चलने लगा, शहर बगदाद की ये निशानी। कहते मैं जा रहा हूँ उस सिमत, पत्ते भी खाने पड़े रास्ते में, 1.5 महीना लगा तो मैं बगदाद पहुंचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? जब मैंने कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो एक ज़माने में नाम बजता था, डंका बजता था, आज जेल में। जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना, उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? का बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद है। तवज्जो है मेरी बात पर? ये ज़ौक़ अगर स्टूडेंट का बनता है ना तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता है, खींच लिया करता है। ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, तो हजरत ने उन्हें बड़ा कुछ नवाजा, तो कुछ लोग कहने लगे हजरत जी इसी को सारा कुछ दे दिया है। फरमाने लगे बेलिया इदियां दावां ही बड़ियां सन, ये तो मैनू रेड़क के मक्खन कट के लै गया, इदियां दावां ही बड़ियां सन। कुछ लोग होते हैं ना प्यारे, उन्हें तरीका होता है, दुआ ले लेते हैं और कुछ कहते रहते हजरत जी दुआ करना, और दुआ लेने वाला काम कोई नहीं करते, कहते रहते हैं दुआ करना। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। आपने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। आप फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफी है। उसने दूर से खड़े होकर कहा वो जहां सिपाही खड़े हैं ना वो इमाम साहब का दरवाजा है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूं, सब्र देखो, इस्तिकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी और बाल मैंने बखेर डाले सारे, एक जगह से 2 जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला,
तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला, और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई, 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए, और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ। मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है। इस्तकामत, सबर, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा आता तो वो 1 दिनार भी रोज देते और हदीसें भी रोज ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहनकर, इमामा बांधकर, खुशबू लगाकर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है, जो मजा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना आए। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाए। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, यह है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रहा अल्लाह पे छोड़े। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ें, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अकेले रह गए थे। उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक 90 साल उम्र थी और आंखों से नाबीना थी।
फरमाते मैं अपनी अम्मा से मशवरा करने आया, मैंने कहा अम्मा मेरे कुछ साथी पीछे चले गए, कुछ शहीद हो गए, मैं जिहाद में अकेला रह गया हूं, हुक्म क्या है? तो अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं? मैंने कहा अम्मा हूं तो मैं हक पे, पर मुझे तेरी बड़ी फिक्र है, तेरी 90 साल उम्र है, ये तो मेरे जो मुकाबले वाले हैं ये तो बड़े सख्त गिर लोग हैं, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तू बर्दाश्त कर लेगी? तो हजरत अस्मा ने पता क्या दलेराना जवाब दिया था कि बेटा बकरे को तकलीफ सिर्फ ज़िबा होते वक्त होती है, जब उसकी खाल उतारते हैं पर उसे कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं उसे कोई तकलीफ है। तो कहा बेटा हौसले के साथ रहना, सब्र के साथ रहना, अगर तू हक पे है पहले ये देख ले, अगर आप हक पे हैं, अगर नहीं तो तौबा करके हक पे आए, और अगर आप हक पे हैं तो फिर आप ये जहन बना लें कि हालात बदलेंगे और जो आपका नजरिया है वो गालिब आके रहेगा। अगर आप हक पे हैं तो फिर अल्लाह आपको तौफीक देगा, लेकिन जिंदगी में इन चीजों से बचें। इमाम आजम के खिलाफ साजिश रची गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बीबी दौड़ी, हुजूर मसला पूछना, आप औरतों से मिला नहीं करते थे, मैंने सवाल करना है जी, जल्दी जल्दी से अंदर आ गई। औरत जैसे ही अंदर दाखिल हुई बाहर शोर हो गया, इमाम साहब के पास औरत है, उसने भी शोर कर दिया कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, 10 दराजी किया इमाम आजम ने। लोग इमाम साहब से कहने लगे, अब प्रोपेगेंडा हो गया, सारे शहर में बात फैल गई, हुजूर आप जवाब दें, आप भी को बात करें। फरमाने लगे क्या जवाब दूं, बीबी अकेला था, मैं अंदर आई है, बाहर शोर हुआ है, औरत कह रही है मैं अकेला था, मैं जवाब दूं भी तो मेरी गवाही कौन देगा, मेरे साथ खड़ा कौन होगा, इस वक्त कौन है उठ के कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं, ये तो माहौल तो और रुख इख्तियार कर गया, तो हुजूर अब क्या करना है? तो आप फरमाने लगे करना क्या है, मैं कोई लावारिस हूं, रब रसूल का मानने वाला हूं, मैं फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं, वो भी तो अदालत है ना। मुसीबत ये है कि मैं और आप सारे फैसले खुद करना चाहते हैं, हालांकि खुद कुछ फैसले छोड़ देने चाहिए, वही हो तो बेहतर है। फरमाया अल्लाह रसूल पे छोड़ता हूं, खत्म हो गई बात। अब मैं दलील दूंगा भी तो मेरी सुनेगा कौन? इस तरह के माहौल में कई दफा आप दलील देते भी हैं तो कोई सुनने को तैयार है, वक्त फैसले करता है, कौन सुनेगा? फरमाया बस ठीक है, ले गए पकड़ के कोतवाल के पास, थाने में बंद कर दिया। अब इतना बड़ा इमाम है, थाने में बंद है, औरत भी बाहर बिठा दी गई, इमाम साहब ने उससे कोई डिस्कस नहीं की। जब अंदर तशरीफ ले गए, सिपाही 2-3 खड़े थे, इमाम साहब ओहो रब करीम के बंदों का वही तरीका, इमाम साहब ने वुजू के लिए पानी मांगा और फिर इमाम आजम ने नफलों की नीयत बांधी और 2 रखते पढ़ के कहने लगे मालिक इज्जतें भी तेरे पास हैं, जिल्लतें भी तेरे पास हैं, तू जिस हाल में अबू हनीफा को रखेगा मुझे शिकवा कोई नहीं, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, जैसे तू चाहे मैं राजी हूं तेरी रजा पे। इमाम साहब दुआ मांग रहे थे तो आंसू हाथों पे गिर रहे थे, आ ना कभी मुसल्ला भी आबाद करें, आ ना कभी दुनिया को तो दुखड़े बड़े सुना लिए, आ ना 2 रखते पढ़ के रोए रब की बारगाह में, महबूब का वसीला पेश करें, आ ना उसे भी तो मनाए ना। इमाम साहब के आंसू गिरने लगे, सिपाही भी परेशान थे, वो बीबी ना खुद ही उठी और इमाम साहब के करीब गई, कहने लगी पहले मुझे दुनिया वाले कहते थे, अब मैं समझ गई हूं आप तो रब करीम के नेक बंदे, आप न रोएं, सवेरे जाना है ना काजी की अदालत में, तो मैं सवेरे गवाही दूंगी कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया था, आप नाराज ना हो। इमाम साहब फरमाने लगे इससे नहीं बात बनेगी, अगर तूने कुछ करना है तो जो मैं कहता हूं वो कर। इमाम आजम थे ना, जो मैं कहता हूं वो कर। उसने कहा जी वो क्या? आप फरमाने लगे अब तेरी गवाही से भी बात और हो जाएगी, इसको कह लिया है, इसको मना लिया है, इसकी मिन्नत कर ली है, इसको रिश्वत दे ली है, हालात का तकादा अब और है, अब इसका जवाब भी कुछ और ही है। बापर्दा औरत थी, बुरके में लिपटी हुई, उसको घर भेज दिया। वो कोतवाल से कहने लगी मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी दे दो, सवेरे आ जाऊंगी। मुद्दई मुकदमा तो मैं हुआ, मुद्दई को थोड़ी कोई बांध के रखेगा। खातून घर चली गई, सुबह काजी की अदालत में मुकदमा लगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कटहरे में खड़े हैं। यार बड़ा मुश्किल होता है मोअज़्ज़ज़ आदमी का कटहरे में खड़ा होना, लेकिन मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में
یہ संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। ये नहीं ना बाज आते लोग, फिर मर्जी है ना होना, कटहरे में खड़ा होना पड़ ही जाता है। कटहरे में खड़े हैं इमाम आजम, तो काजी पूछता है आपकी बड़ी कदर है, बड़ी अहमियत है, तो आप इस औरत के बारे में क्या कहते हैं? तो इमाम साहब फरमाने लगे ये जो कह रही है इससे पूछ लें। तो खुद खातून कहने लगी मेरा इमाम साहब से ताल्लुक है। आप फरमाने लगे ठीक कहती है। सारी भरी अदालत सब लोग हैरान, हजरत ताल्लुक है? फरमाया हाँ। किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी है, ज़ौजा मेरी अहलिया है। जनाब किस तरह? फरमाया मोहल्ले की बीबियां बुला लो, इसके अब्बा को बुला लो, चेहरा दिखा लो। वो सारे लोग जमा हो गए, चेहरा खोल के देखा तो इमाम साहब की ज़ौजा थी। इमाम साहब ने उस खातून को कह के भेजा था कि यही बुरका मेरी बीवी को दे के सवेरे भेज देना, यही वाला बुरका जो तूने पहना है, अब घर जा और मेरी अहलिया को ये बुरका दे के भेज देना। वो बुरका दे के उसने भेज दिया। जब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया साबित हो गई कि ये तो इमाम साहब की अहलिया हैं जो खड़ी हैं, अब वो जो साजिश रचने वाले थे वो दाएं बाएं देख रहे थे। तो इमाम साहब ने एक बात की जो बड़ी शानदार है, फरमाया तदबीरें तुमने भी की थी, पर जो तदबीर मेरा रब फरमाता है ना, जो तदबीर मेरा, फरमाया ये अबू हनीफा की तदबीर नहीं, ये तदबीर मेरे अल्लाह की है जो उसने मुझे अता फरमाई, मुझे सुझाई। अब काजी साहब ने हुक्म दिया कि जितने लोगों ने इल्जाम लगाया वो सारे माफी मांगे। वो आए जिसने बात की। भाई वक्त को देखें, फैसले अल्लाह के हवाले करें। हम लोगों ने झगड़े कर करके, दलाइल दे दे के, बहस कर करके मामलात को इतना उलझा लिया है। आप यकीन करें एक एक खानदान की 15-15 मीटिंगें और पंचायतें हो जाती हैं, पर रिजल्ट सिफर है। वो जी वो फलां चौधरी साहब उसके साथ मिल गए थे, फलां आदमी उधर चला गया था। आप थोड़ा वक्त दें, सब्र करें, इस्तकामत का मुजाहरा करें। आप देखें हालात किस करवट बैठते हैं। कई दफा सुलह की पेशकश की जनाब अबू सुफियान को, लेकिन वो मानते नहीं थे। हजरत अब्बास फरमाते मैंने कई दफा उन्हें कहा, हुदैबिया में भी मैंने कहा, उन्होंने सख्त शराइत के साथ सुलह की, लेकिन जब हुजूर लश्कर लेके गए ना मैदान में, तवज्जो है मेरी बात पर, 10,000 का लश्कर गया तो फिर अबू सुफियान खुद उठ के हजरत अब्बास के घर गए। कहने लगे मैंने तो आज आपके भतीजे की शान देखी है। तो हजरत अब्बास कहने लगे अभी भी वहीं खड़े हो, ये भतीजे की शान नहीं, ये अल्लाह के महबूब की शान है, ये रसूल कायनात की शान है सल्लल्लाहु अलैहि। तो कहा अब मैं सुलह करना चाहता हूं, अब मेरी सुलह करा दो। वहां भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया जब हम कहते थे तो तू क्यों नहीं आता था, जब हम मुआहदात करना चाहते थे तो क्यों नहीं आता था। मेरे महबूब ने इज्जत दे दी, फरमाया तेरे साथ भी सुलह है, तुझे भी माफी है, और जो तेरे घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफी है। खत्म हो गई बात।